नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शराब की वजह से समाजी बुराइयों में इजाफा, दूध से ज्यादा हुकूमत की शराब पर तवज्जो, अकबर ओवैसी की असेंबली में तकरीर। हुकूमत की जानिब से मौसर वजाहतें न देने पर मजलिस का ऐवान से वॉकआउट। आधार कार्ड्स के लिए नए नामों का इंदराज अप्रैल से दोबारा शुरू करने हुकूमत का तयक़ुन, मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर मजलिस की तवज्जो दहानी। चंद्रबाबू नायडू और रियासती वज़रा के दरमियान एक मरतबा फिर नोक झोंक, शराब सिंडिकेट मामले पर तलख मुबाहिस। शराब की वजह से बढ़ने वाली समाजी बुराइयों का एक और वाकया, अलवाल में लबे सड़क एक शख्स के हाथों बरादर निस्बती का कत्ल। और चंद्रानगोटे में एक साथ 3 दुकानों में सरखा, पुलिस स्टेशन चंद कदम पर होने के बावजूद सारिकों के हौसले बुलंद। अब खबरें तफसील से। मुसलसल हंगामा आराइयों के वाक़ात को देखकर कायदे मजलिस मुखरना पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली में हुक्मरान जमात और अपोजिशन को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाते हुए ऐवान पर सख्ता तारी कर दिया। अकबर ओवैसी ने तलख कलामी, इल्ज़ाम तराशियों और हंगामा आराइयों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अरकान मुक़न्ना कानून साज होते हैं, उनको सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। जमहूरियत अपोजिशन को तनकीदें करने का हक हासिल है। एक तरफ तनकीदें अखलाक के दायरे में होनी चाहिए तो दूसरी तरफ हुक्मरान जमात को भी सब्र और तहम्मुल के साथ उन तनकीदों का सामना करना चाहिए। लेकिन जिस तरह ऐवान में झगड़े हो रहे हैं वो ऐवान के विकार के खिलाफ और शर्मनाक सूरत हाल है। अकबर ओवैसी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर को अपनी काबीना और साथ ही वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हक है, मगर बेकायदगियों के मामलात पर अवामी तशवीश को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बादअज़ां अवामी मसाइल की एकसुई में हुकूमत और अपोजिशन की अदम संजीदगी पर नाराजगी का इजहार करते हुए अकबर ओवैसी ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। Rising up to my protest, sir. Continuing with my protest about this debate which had happened, sir. Sir, it is the responsibility of a chief minister to protect his cabinet and ministers. At the same time, the responsibility of chief minister is towards the people of the state. Listening to his reply in the debate, I was saddened that he was more criticizing the leader of opposition and protecting his cabinet. Fine, he was doing that. But what about the corruption which is happening in this department? How is the government going to curb this menace of this corruption in this department? Nothing has been spelled about that. And sir, I was very surprised and shocked. After my speech, I went to my party office. I was reading books and I was seeing economic survey, sir. I don't know if you have the copy, sir. If the leader of opposition and leader of the house has a copy, kindly go through that page number 46, sir. Milk consumption is 30 lakh liters, sir. Actually in bracket is written 30.65 lakh liters a day in the state for a population of 8.46 crores. And the expenditure on buying milks comes to rupees 9 crore. And as per CAG report, page number 10, an audit report of Beverages Corporation 2010 and 11. Great respect for the judge, and I know what I have to do. I don't have to learn from anyone. It does not help any of us to continue this kind of a debate. Members were here, leave it at that, leave it at here. Yes. Let him conclude, I'll give you. Let him conclude, I'll give you. Stop. Yes. He's on his legs, let him complete. He's on his leg, let him complete. Yes. Sir, I have not insulted anybody. Absolutely. Nor I have any intentions of insulting anybody. I need not insult anybody. The behavior itself is insulting them. They got to realize, whoever it is. I'm not going to go to that level and say that who it is. Going to the protest. I'm not. Leave it to that. I'm here standing
and trying to come for the protection of the chair, for the dignity of this house, for the decorum of this house. I am not insulting anybody, sir. I just mentioned that we all need to protect the sanctity, the dignity, the decorum of this house, and we all need to respect the chair also. That is what I said. That is I don't think anything wrong in that. That is without a doubt. Please go into your protest. Yes. And I also, all of us have to rise to the occasion. Yes. Yes. and the honorable leader of the house, honorable chief minister, when he spoke, he has not spoken about the timing which has not been maintained by the liquor shops. The timings are not been. That is what he was trying to convey to you. That he had not concluded his speech because there was disturbance at the podium. That's exactly what he was trying to convey to you. No, I'm not, sir. I'm not yielding. Yes. I'm not yielding, sir. Yes. Kuchan. I'm not yielding, sir. I have given. और आज शराब का ये आलम हो गया है साहब, बैठिए कि आज हमारे रियासत में पैसा नहीं है, हमारे पास वेलफेयर स्कीम्स के वास्ते पैसा नहीं है, लेकिन लोगों को खाने के वास्ते पैसा है। चाहे वो माइनिंग हाउस में पैसे खा रहे हैं, चाहे वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को खाने वाले पैसे खा रहे हैं उसमें, चाहे वो लैंड का मामला हम लोग खाने वाले खा रहे हैं, और आज शराब के मामले भी खाने वाले खा रहे हैं। लेकिन आज इतनी बहस हुई है, हम समझते हैं कि चाहे वो कांग्रेस हो या तेलुगु देशम हो, अगर ये लोग इस सब्जेक्ट पे, इस लिकर पे अगर सीरियस हैं, तो इन दोनों को आज इस बात का यहां पे ऐलान करना है कि हमारी पार्टी की तरफ से हम शराब पे मुकम्मल बंद करने के लिए और प्रोहिबिशन लाने के लिए मुतालबा करेंगे। अगर शराब को बंद करने और प्रोहिबिशन लाने की बात अगर कोई पार्टी नहीं करती है, तो उससे साफ यही जाहिर होगा कि ये लोग इस मामले में संजीदा नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि ये रियासत की आवाम शराब पीती रहे और लुढ़कते रहे, रास्तों पे गिरती रहे, और ये रियासत हमारी तबाह बर्बाद होती रही। हम हमारी पार्टी के जानिब से ये कहना चाहते हैं कि रियासत आंध्र प्रदेश में टोटल प्रोहिबिशन लाना चाहिए, और अगर आप टोटल प्रोहिबिशन लाते हैं तभी समाज की बुराई खत्म होगी, औरतों पे जुल्म खत्म होगा, नौजवान बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा, और हमारे सोसाइटी से समाज में जितनी बुराइयां हैं वो सारी बुराइयां खत्म होगी। और मैं जितने मुतालबात रखा हूं, इन मुतालबात को हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा जवाब नहीं मिला। इस वजह से हम समझते हैं कि इतनी बहस के बाद भी जो लोग कसूरवार है, जो पैसे खाए हैं, उनको कोई सजा नहीं मिलेगी। और मेरी पार्टी की तरफ से मैं हुकूमत की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से भी मौसर जवाब नहीं देने पर कि मुकम्मल प्रोहिबिशन लाने के बारे में जो नहीं कह रहे हैं ये लोग, हमारा मुतालबा है कि मुकम्मल प्रोहिबिशन लाए। इसलिए मैं आज अपनी पार्टी की तरफ से इस ऐलान से वॉकआउट करता हूं सर। Yes. खबरनजीर शराब सिंडिकेट मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहिस देखने में आए। एक मरतबा फिर चंद्रबाबू नायडू और वज़रा के दरमियान जबरदस्त नोकझोंक हुई, जबकि मजलिस ने शराब पर मुकम्मल इम्तना आयद करने की वकालत की। ऐसा लगता है कि अपोजिशन लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू की क़ियादत में तेलुगु देशम पार्टी आजकल हुकूमत पर कुछ ज्यादा ही बरहम है। वो असेंबली में हुक्मरान जमात के अरकान के साथ काफी तलख रवैया इख्तियार किए हुए हैं। शराब सिंडिकेट मामले ने एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू को गर्म कर दिया और वज़रा के साथ उनकी जबरदस्त नोकझोंक हुई। शराब सिंडिकेट मामले पर हुकूमत के जवाब के बाद जैसे ही मुबाहस का आगाज हुआ, हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहस शुरू हो गए। मुद्दू कृष्णा नायडू ने इल्जाम लगाया कि शराब मामले में 15,000 करोड़ रुपए की बदउनवानी हुई है और उसमें वज़रा और दीगर कई अरकान असेंबली मुलविस हैं। इस सिलसिले में एसीबी ने रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है, लेकिन वो उसे मंजर-ए-आम पर लाने से खौफजदा है क्योंकि उससे हुकूमत के गिर जाने का खतरा है। इस पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सारा मामला अदालत में ज़ेर दौरान है। महज अवाम को हक़ाइक़ से वाकिफ करवाने के लिए यह मौजू ऐवान में ज़ेर बहस लाया गया है। चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने वज़रा को बचाने के लिए रिपोर्ट के सफ़े नंबर 7 को ही गायब कर दिया है। इसके बाद इल्जामात और जवाबी इल्जामात के सिलसिले ने ऐवान में शोरगुल बर्पा कर दिया। इस दौरान वज़ीर ज़राअत के लक्ष्मी नारायण ने इल्जाम लगाया कि मुद्दू कृष्णा नायडू खुद कॉलेज में ताश खेलते हुए पकड़े गए।
वज़ीर लेबर नागेंद्र ने एसीबी रिपोर्ट का हवाला देने पर सवाल किया कि तेलुगुदेशम को यह रिपोर्ट कहां से मिल गई, हालांकि बहुत राजदारी के साथ रखी जाती है। उन्होंने कहा कि मुद्दू कृष्णमा नायडू ने अगर गलत तरीके से रिपोर्ट हासिल की है तो फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू के श्रीमार पर भी हंगामा हुआ कि अगर वुज़रा अच्छी तालीम हासिल करते, समाजी खिदमत की तरबियत हासिल करते तो आज शराब सिंडिकेट में मुलविस न होते। नायडू ने कहा कि उनके बच्चों ने सैन फ्रांसिस्को में आला तालीम हासिल की है ताकि अच्छे शहरी बन सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रियासत में शराब पर मुकम्मल इम्तना आयद करने का मुतालबा किया है। शराब सिंडिकेट पर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शराब की वजह से समाज में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने इबादतगाहों और तालीमी इदारों के करीब वाक़ शराब खानों के लाइसेंस मनसूख करने का भी मुतालबा किया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शराब के गैर कानूनी कारोबार में रियासत की असर रसूख रखने वाले सियासतदान भी मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जमात शुरू से ही शराब पर पाबंदी का मुतालबा कर रही है। सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब असेंबली के रुकन थे तो दोनों ने नशाबंदी का मुतालबा किया था। वो खुद सन 2004 से मुसलसल इस सिलसिले में आवाज उठा रहे हैं। अकबर ओवैसी ने शराब माफिया की गैर कानूनी सरगर्मियों पर तफसीली रोशनी डाली। रियासती असेंबली में मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर मुबाहस के दौरान मजलिस ने सरकारी दवाखानों में डायलिसिस की नाकाफी सहूलतों और आधार कार्ड के बगैर राशन की अदम इजराई की शिकायत से हुकूमत को वाकिफ करवाया। जुमे को असेंबली की कार्रवाई के आगाज पर स्पीकर एन मनोहर ने अपोजिशन की तहरीकात इल्तिवा को मुस्तरद करते हुए वक्फे सवालात का आगाज किया। सरकारी दवाखानों में डायलिसिस से मुताल्लिक उठाए गए सवाल पर अपोजिशन जमातों ने बताया कि 100 बिस्तरों वाले सरकारी दवाखानों में भी डायलिसिस की सहूलत नहीं है। अवाम को इस सहूलत की अदम दस्तयाबी से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर कहा कि एक्यूट नेफ्रो से मुतासरा मरीजों को आरोग्यश्री स्कीम के तहत सिर्फ 10 बार डायलिसिस की सहूलत फराहम की गई है, जो कि नाकाफी है। उन्होंने बताया कि इस मर्ज से मुतासरा अफराद को एक हफ्ते में 3 बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। अकबर ओवैसी ने बताया कि आरोग्यश्री के तहत डायलिसिस के लिए 20,000 रुपए मख्तस किए गए हैं। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि इस रकम को 50,000 रुपए किया जाए। 2 times to 3 times, sir. But actually the patient requires, sir, in a month they require at least 8 times dialysis, sir. So for that I would like to request the Honorable Minister to give necessary instructions to Arogyashri people to increase the dialysis, sir. क्योंकि dialysis बहुत कम है, sir. And also, sir, and one more thing, sir, in acute renal failure, the amount which is sanctioned for this is 20,000 rupees, sir. It is very less. 20,000 rupees just goes off in buying the medicine, sir. So in that, for that also, if that amount can be increased from 20,000 to 50,000, it will be a benefit to the poor patients. This is only 2 suggestions which I wanted to make, sir. वजीर सेहत कोंडामुली ने अकबर ओवैसी की जानिब से उठाए गए सवाल पर कहा कि रियासत में 165 डायलिसिस के मराकिज हैं, जिनमें उस्मानिया में 17 और गांधी हॉस्पिटल के 18 मराकिज भी शामिल हैं। कोंडामुली ने बताया कि सिर्फ नेफ्रोलॉजिस्ट की कमी की वजह से डायलिसिस की सहूलत को फराहम करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन हुकूमत जल्द ही नेफ्रोलॉजिस्ट के तकर्रुरात के लिए इक़दामात करेगी और इस मसले की यकसोई की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि आरोग्यश्री स्कीम को मजीद फाल और कारगर बनाने के लिए इक़दामात भी किए जाएंगे। आधार कार्ड की इजराई से मुताल्लिक उठाए गए सवाल पर मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा कि अवाम को सिर्फ आधार कार्ड की रसायत जारी की गई हैं और 8 माह मुकम्मल होने के बावजूद आधार कार्ड अवाम तक नहीं पहुंच पाए हैं। अहमद बलाला ने कहा कि राशन शॉप मालिकान की जानिब से भी आधार कार्ड के बगैर राशन की फराहमी से इनकार किया जा रहा है। उन्होंने नए कार्ड्स के इंदराज को भी रोक देने की शिकायत की। आधार कार्ड के लिए एप्लीकेशंस देकर अपने फोटोज उतारे थे, आज तक भी आधार कार्ड उनको नहीं दिए जा रहे हैं। आज तक भी आधार कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होना सही तरीके से चालू नहीं हुआ है। 8-8 महीने 6-6 महीने से लोग रुके हुए हैं। जिस तरीके से पिछले रक्षा भंडार प्रोग्राम के अंदर बाज़ लोगों को राशन कार्ड दिया गया, बाज़ लोगों को राशन कार्ड की जगह राशन कार्ड के कूपन्स दिए गए और उनको जब तक आधार कार्ड की स्लिप नहीं लेकर आ रहे उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। तो अब लोग 8-8 महीने 9-9 महीने से आधार कार्ड के स्लिप से जमा के रखे हुए हैं
और अब तो यह उनको जब जिसके पास अगर से कूपन देने के बाद अगर स्लिप लेकर नहीं आए तो उनको आधार का राशन नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले बार मिनिस्टर साहब ने कहा कि इनको कूपन्स दे रहे हैं, इनको आधार कार्ड क्यों नहीं इशू किया जा रहा है, राशन कार्ड क्यों नहीं इशू किया जा रहा है। तो मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आधार कार्ड के लिए वो रुका कर रखे हैं और आज पिछले दिनों से आधार कार्ड का एनरोलमेंट बंद कर दिया गया। क्या ये बात सही है? एनरोलमेंट क्यों बंद किया गया? जहां पर हम मालूम किए तो हमको ये पता चल रहा है कि एनरोलमेंट इसलिए बंद किया गया क्योंकि उसके अंदर डबल एंट्रियां डुप्लीकेटिंग हो रही है। अगर से स्टार्टिंग के अंदर आज ही अगर से डुप्लीकेटिंग हो रही है, उसके अंदर डबल एंट्रीज हो रहे हैं, तो क्या प्रिकॉशंस लेकर आप आधार कार्ड को इतना आगे लेकर जा रहे हैं? हमको तो अब कोई सेंटर के ऊपर आधार कार्ड का जो है सो एनरोलमेंट नहीं किया जा रहा है और उन लोगों को आधार कार्ड के बहाने के ऊपर खाली कूपन देकर राशन कार्ड नहीं दिया गया, खाली आधार कार्ड का बहाना देकर गरीबों को राशन भी नहीं दिया जा रहा है। एक इंसान कब तक एक स्लिप संभाल के रखेगा? 8 महीने हो गए उसको, 8 महीने से आज तक आधार कार्ड की सप्लाई नहीं की गई। और मैं ये कहूंगा कि ये भी कहना चाहूंगा कि आपके जरिए कि उसको आधार कार्ड का जो भी सिस्टम है उसको सही किया जाए, जल्द से जल्द। जो 8 महीने पहले जो लोग लिए गए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया जाए साहब, नहीं तो आखिर में ऐसे ही हाल होगा जिस तरीके से वोटर आईडी कार्ड कुंडियों के ऊपर मिले थे, आधार कार्ड भी कुंडियों के ऊपर मिल गए साहब। सीदर बाबू ने मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला की जानिब से नए आधार कार्ड के लिए नामों के इंदराज को रोके जाने के सवाल पर जवाब देते हुए बताया कि 15 फरवरी से नए नामों का इंदराज रोक दिया गया है, ताहम अप्रैल से इसका दोबारा आगाज अमल में आएगा और 6 माह में इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। बादज़ां वक्फ़ सिफर में मजलिस के रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने कहा कि वक्फ़ सिफर में जो सवाल किया जाता है वो सिफर ही रह जाता है। I think he is the first time he is present during 0 hour. So we are very lucky to see Honorable Chief Minister here during 0 hour, because what happens, whatever we say, it will go as a zero, sir. Sir, this is a very important matter. I hope, sir, this is a very important matter. Please give me 2 minutes. Yes. Sir, the corruption of Andhra Pradesh has crossed all the limits. I don't want to go further. Corruption is of many types, but corruption when it leads to death or innocents being sent to jail is very dangerous. Sir, as you are aware that one forensic laboratory is available in Hyderabad, where any criminal offence is committed, the samples of blood, semen, DNA, fingerprints are sent to FSL laboratory, and the report of the FSL laboratory is accepted by police and court. But unfortunately, sir, one foreign woman was raped in Banjara Hills about 6 to 8 months back. All the entire police force was alert because she was a foreigner. But unfortunately or fortunately, nobody was caught. The suspected people were rounded up, their blood samples were taken and sent to FSL laboratory. Sir, it is a great shock. The person who tests the blood, semen, DNA, and on whose report the director signs, that fellow was offered bribe by one of the person whose blood sample was taken. And for taking the bribe from FSL Nilafar Hospital, he came to Nilafar Hotel. The bribe was being given to him. Luckily, he was caught. So, sir, in FSL laboratory, the corruption is there. So, all terrorists, the persons who have committed heinous crimes will go scot-free, and innocent persons will be sent to jail. I want, sir, Honorable CM, sir, it's a very important, sir. Please. Minister Gar. Yes. अरे इन्हों क्या नोट करो बोलते खाली, सर. बैठिए, आपको मैं वापस I will ensure. जिस पर रियासती वजीर अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वक्फ़ सिफर में मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खान ने आलूदा पानी का मसला उठाते हुए कहा कि मीरालम फिल्टर की मौसर निगहदाश्त न होने की वजह से शहर में कई मुकामात पर
आलूदा पानी सरबराह किया जा रहा है। ये मीर आलम फिल्टर के अंदर पिछले साल फिल्टर बेड का काम सैंक्शन हो चुका था। आज 1 साल हो चुका है। एमडी वाटर वर्क्स और डीडीआरसी मीटिंग के अंदर में इंचार्ज मिनिस्टर के सामने कई मर्तबा ये चीज को रखा। इसकी तरफ से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी, चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी और ओल्ड सिटी में जितने दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज है पूरे पानी से अफेक्टेड हो रहे हैं। ये फिल्टर का काम होने की तरफ से कई कॉन्स्टिट्यूंसियों को फायदा होगा और पिछले 1 साल से काम सैंक्शन हो चुका है, काम नहीं कर रहे हैं। मैं एमडी वाटर वर्क्स को कई मर्तबा बोल चुका हूं, इसकी तरफ से पीला पानी, येलो पानी में पीलापना आ रहा है, फिर और पानी में कीड़े आ रहे हैं और पानी में बो आ रही है। महकमा आसार खदीमा के डायरेक्टर चन्ना रेड्डी ने कहा कि सैफाबाद में जो दफीने की तलाश की जा रही है वह हफ्ते की शाम या फिर पीर की सुबह तक मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है, इब्तदाई तलाश की भी तकमील हो चुकी है, खुदवाई जारी है। हफ्ते की शाम तक हम कोई नतीजे पर पहुंचेंगे। अगर हफ्ते की शाम तक काम मुकम्मल नहीं किया गया तो पीर की सुबह तक जारी रहेगा। बल्दिया के पिन पॉइंट प्रोग्राम के तहत उपगुड़े के मजलिसी रुकने बल्दिया समद बिन अब्दाद ने अपने डिवीजन का जोनल कमिश्नर बल्दिया और दीगर आला बलदी ओहदेदारों के हमरा दौरा किया। इस तफसीली पैदल दौरे के दौरान उन्होंने बलदी ओहदेदारों को अवाम के बुनियादी बल्दी मसाइल से वाकिफ करवाया और ज़ेर इल्तवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए मुतवज्जे किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने कुली कुतुब शाह स्टेडियम में वाक़े मजलिस के तरबियती मरकज़ का दौरा किया और महकमे पुलिस में तकर्रुरात के सिलसिले में जारी फिजिकल टेस्टों के पहले मरहले 5 किलोमीटर दौड़ की कामयाबी से मुकम्मल करने वाले उम्मीदवारों से कहा कि वो इब्तदाई कामयाबी को मुकम्मल कामयाबी न समझें बल्कि मुलाजिमत हासिल करने तक सख्त मेहनत करें। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से नौजवानों को मुलाजिमत फराहम करने की खातिर मजलिस की जानिब से तरबियती मराकिज़ कायम किए गए हैं। उन्होंने ट्रेनर्स और कैंप के जिम्मेदारों की सितारिश करते हुए कहा कि शहर और अजला में मजलिस के तरबियती मराकिज़ से 500 से ज़ायद नौजवान पहले मरहले में कामयाब हुए हैं। उन्होंने उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। चलाए जाने वाले इन तरबियती मराकज़ के ज़िम्मेदारों की तरफ से जो काफ़ी मेहनत की गई थी, इंतज़ाम किए गए थे, जिसमें हमारे मंसूर खान साहब है, मुजफ्फर साहब है, दीगर हजरात है, उन लोगों की भी मेहनतें इंशाअल्लाह बेकार रायगा नहीं जाएगी, रंग लाएगी। और बहरहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश है कि पुलिस तकर्रुरात में जो बहुत कसीर मकदार में तकर्रुरात होने वाले हैं और ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाते हुए खुसूसन मुसलमानों को इससे इस्तेफ़ादा करना चाहिए और इसमें मज़ीद मेहनत करके ट्रेनिंग में जो भी आपके इम्तिहानात है, उसके टेस्ट हैं, उसमें कामयाबी के लिए मज़ीद मेहनत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह तवक्को है कि ये मराकज़ से काफ़ी तादाद में बच्चे सिलेक्ट होंगे और पुलिस में अपने मुल्क की खिदमत में मसरूफ़ रहेंगे। ये मेहनत रायगा नहीं जाएंगी। इंशाअल्लाह नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के निगरानी में ये सिलसिला अरसे दराज तक जारी रहेगा। फलकनुमा बस डिपो में कंडक्टर्स की हड़ताल का जुमे को दूसरा दिन था। डिपो मैनेजर ने मीडिया को बताया कि हड़ताल की वजह से शहर के मुख्तलिफ डिपोज की 40 बसें इस रूट पर चलाई जा रही हैं ताकि मुसाफिरीन को तकलीफ न हो। उन्होंने बताया कि जुमे के दिन फलकनुमा बस डिपो की 110 बसें डिपो से बाहर न निकल सकीं। अलवाल में एक शख्स ने नशे की हालत में अपने बरादर निस्बती का कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि जुमे की सुबह लेबर पेशेंट नरसिम्हा और सीताराम अंबिका वाइन शॉप से शराब पीने के बाद दुकान के रूबरू झगड़ने लगे। लड़ाई के दौरान सीताराम ने तैश में आकर नरसिम्हा पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। ताजुब की बात यह है कि वहां उस वक्त कई अफराद मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें छुड़ाने की कोशिश नहीं की। अलवाल पुलिस ने सीताराम को गिरफ्तार करके उसके साथ शराब की दुकान के मालिक के खिलाफ ही केस दर्ज कर लिया है। उधर मलकाजगिरी में एक शख्स पर वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया गया। मुकामी अफराद ने जुमे की सुबह हज्जाम पेशा 40 साला महेंद्र की लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। चंद्रानगोट्टे में एक ही रात में 3 मुतसिला दुकानों में सरके की वारदातें पेश आईं। मुतासरा दुकानों के मालिकीन ने मीडिया को बताया कि एक मोबाइल शॉप से 50,000 रुपये मालियत के मोबाइल फोन का सरका कर लिया गया, जबकि स्टेशनरी की दुकान से 40,000 रुपये का स्टॉक और 7,000 रुपये नकद रकम का सरका कर लिया गया।
तीसरी दुकान जो चिकन सेंटर है उसका काउंटर तोड़कर 3000 रुपए नकद रकम उड़ा ली गई। दुकानदारों ने मीडिया को बताया कि सारिक दुकानों की टीन की छत तोड़कर दाखिल हुए थे। उन्होंने पुलिस को मोरद इल्जाम ठहराते हुए कहा कि चंद्रान गुट्टा पुलिस इन दुकानों से चंद कदम के फासले पर है, लेकिन इसे पुलिस की नाअहली कहिए या सारिकों के हौसले की बुलंदी के चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता। मलकपेट में एक लड़की नदी में गिरकर फौत हो गई। मुकामी अफराद ने बताया कि 7 साला अंबिका 10 साला माधवी के साथ खेल रही थी कि पांव फिसलकर नदी में गिर पड़ी। मुकामी अफराद ने उसे पानी से निकाला, लेकिन तब तक वो फौत हो चुकी थी। मलकपेट पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। काचीगुड़े में खातून ने पुलिस की हरासानी से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी करने की कोशिश की। बताया जाता है कि 23 साला रेशमा एक नौजवान के इश्क में मुब्तला थी। इन दोनों की मोहब्बत इस हद तक आगे बढ़ गई थी कि सिवाय शादी के उसका कोई दूसरा हल नहीं था, लेकिन इस नौजवान ने रेशमा से शादी करने से इनकार कर दिया। शिकस्ता दिल रेशमा ने बदला लेने की कोशिश करते हुए इस नौजवान के खिलाफ काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुबैना तौर पर केस दर्ज करने से इनकार कर दिया और उल्टा पुलिस ने रेशमा को ही हरासा करना शुरू कर दिया। पुलिस के रवैये से रेशमा को एक और धक्का लगा। उसने काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ पानी की टांकी पर चढ़कर खुदकुशी करने की कोशिश की। ताहम बाद में पुलिस ने नौजवान के खिलाफ कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शराब की वजह से समाजी बुराइयों में इजाफा, दूध से ज्यादा हुकूमत की शराब पर तवज्जो, अकबर ओवैसी की असेंबली में तकरीर। हुकूमत की जानिब से मौसर वजाहतें न देने पर मजलिस का ऐवान से वॉकआउट। आधार कार्ड्स के लिए नए नामों का इंदराज अप्रैल से दोबारा शुरू करने हुकूमत का तयक़ुन। मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर मजलिस की तवज्जो दहानी। चंद्रबाबू नायडू और रियासती वज़रा के दरमियान एक मरतबा फिर नोक झोंक, शराब सिंडिकेट मामले पर तलख मुबाहिस। शराब की वजह से बढ़ने वाली समाजी बुराइयों का एक और वाकया, अलवाल में लबे सड़क एक शख्स के हाथों बरादर निस्बती का कत्ल। और चंद्रानगुट्टे में एक साथ 3 दुकानों में सरखा, पुलिस स्टेशन चंद कदम पर होने के बावजूद सारिकों के हौसले बुलंद। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।